this. Just a second. मल्टीपल इंस्टेंसेस इंस्टॉल्ड है ना, किसके बारे किस वजह से मैंने पिछली बार किया था मुझे याद नहीं आ रहा है। इक्लिप्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस इंस्टॉल्ड है, तो कौन सा मैंने इंस्टेंस है? हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो मैंने किस में बनाया था वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मिल नहीं रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अच्छा बोर्ड पे पढ़ाया था ना, ओके ओके, तो बनाई नहीं है कोड ना। अच्छा उसका वीडियो डलवाई थी, ओके ओके, अब याद आया, ठीक है ठीक है ठीक है, याद आया, फाइन फाइन फाइन। तो पुराने उसके बैकअप में मिल जाएगा इसका, ठीक है ठीक, पुराने बैकअप मिल जाएगा, रखा है, मिल जाएगा। So we have seen in the last class that we try to mimic a Zoom application, wherein for simplicity of understanding we did this, wherein we had this animal class as the parent class, and there were several child classes or subclasses of this parent class. Like for example, if you see cat basically extends animal, right? So when cat extends animal, it is going to inherit the methods which are available in the animal class. Like for example, there is a eat method and there is a move method. So both these methods will become the part of the cat class, right? So eat method and the move method, right? They become the part of the cat class. So if I just try to open quick outline, okay, we have to okay. So you will see there is another extension to the existing methods,
which are the eat and the main method, the extension is wavetail method. So this wavetail is an extension, an addition, right? We call the cat class as an extension to the animal, and animal class as a generalization to the something which you add, extend from the existing definition. So whatever you have got in animal, that is inherited, right? So cat gets everything which animal has. So animal has two methods, right? Animal has two behaviors. One is the eat, the other is the move. Let me remove this move method as of now because I have not thought about abstract. So let me remove it, right? So it has got one eat method as of now, right? Animal class has got one eat method. So your cat class will get one eat method, one eat method, which is from animal class, and then it will add its own two behaviors, that is wave tail and move, correct? ये अपनी तरफ से ऐड कर रहा है ना, यानी एनिमल की डिफिनेशन को एक्सटेंड कर रहा है टू ए स्पेसिफिक एनिमल, दैट इज कैट, right? Where animal is a generalization. When I say animal, I mean cat, I might mean lion, might mean bat or anything else, right? कुछ भी मैं कह सकता हूँ, right? एनिमल क्या है, जनरलाइजेशन इसको बोलेंगे कि जनरल चीज है, right? Whereas when we move down, we say the sub class is a specialization or an extension. अगर उसके अंदर कुछ और वो बिहेवियर या और डिटेल्स ऐड कर रहा है डाटा के फॉर्म में, तब हम उसको एक्सटेंशन भी साथ में कहेंगे, जैसे यहाँ पे कर रहा है, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव टेल भी एक बिहेवियर ऐड हो रहा है और मूव एक नाम का एक बिहेवियर ऐड हो रहा है, दो बिहेवियर ऐड हो रहे हैं, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, राइट? एक फंक्शन हमको इनहेरिट होकर मिल रहा है विच इज द ईट मेथड, एंड टू मेथड्स वी आर एडिंग फ्रॉम आवर साइड. सो वी आर एक्सटेंडिंग द डिफिनेशन ऑफ द कैट, ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिफिनेशन ऑफ द एनिमल. क्लियर हो गया? ओके. Similarly, elephant. If we say elephant, now elephant has got one extension, which is the move method. In fact, the body of the move method is still empty, right? We have not provided any implementation. Say, for example, if I just say elephant moving slowly, okay. Now the whole body is complete with some implementation part, right? Otherwise, even though we just created the body, that means the behavior came into existence. ठीक है? So move is an extension for elephant from animal. Now what is this eat method? Animal के अंदर eat method था, animal में था eat method, animal में eat ही method है बस, ठीक है? and अपना सिर्फ eat method है, right? Because elephant extends animal, तो इसका मतलब उसको eat method एनिमल से मिल रहा होगा, राइट? हमने सेम सिग्नेचर, एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर यूज करी. देखिए ईट में एनिमल के अंदर कोई पैरामीटर नहीं था, है ना? रिटर्न टाइप वाइड था, पब्लिक था, सेम सिग्नेचर हमने यूज करी, कोई पैरामीटर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है? उसी मेथड को अगर हमने दोबारा से रीराइट करा है अगर एलिफेंट क्लास के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो वर्जन ईट मेथड का हमें एनिमल क्लास से मिल रहा है, जब एलिफेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो और उस पर ईट मेथड रन करना हो, उस वर्जन को डिस्कार्ड कर देना, नया जो वर्जन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, इसको यूज कर लेना, ठीक है? अब एनिमल क्लास के अंदर जो मेथड होगा, ये सिंपली कह रहा हो एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, वेयर एलिफेंट के अंदर मेरा इंप्लीमेंटेशन चेंज हो सकता है, एलिफेंट इज ईटिंग शुगर केन, राइट? So when the object is created and the each method is called upon the object, and if the object is of elephant not of animal, then it makes sense that this particular eat method which belongs to the elephants takes the charge because it is more near to elephant as compared to the animal. आपको रूल बताया था ना, करीब वाला दूर वाला, राइट? है ना? And this is what we call as overriding.
when we have a method which is being inherited from the parent class and we change the definition of that method, यानी कहते हैं ना कि the Supreme Court has over has overridden the High Court decision, right? यानी इसको change कर दिया, right? So we if we change the definition of the behavior which has been inherited from the parent class, then we call that particular behavior as a overridden behavior or overridden method, right? And this annotation basically just indicates that it's a overriding. इट्स एन ओवरराइडिंग, ठीक है। एनोटेशन क्या होता है? एनोटेशन आपका एट द रेट के सिंबल से शुरू होता है और उसके साथ कुछ टेक्स्ट होता है जैसे ओवरराइड है, राइट। दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू एक्सिक्यूट, ठीक है। एनोटेशन एग्जीक्यूट नहीं करता है। एनोटेशन सिर्फ इंडिकेशन देता है। एक तो आपको भी विजुअल इंडिकेशन मिल रहा है, हालांकि आपके लिए कमेंट भी था, है ना, लेकिन ये जो इंडिकेशन है ये आईडी वगैरह के लिए या टूल्स वगैरह के लिए है। ये जो इंडिकेशन है ये टूल वगैरह के लिए है, तो टूल इसको यूज करके समझ जाते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इट सेज दिस मेथड ईट मेथड इज ओवररिडन बाय द एलिफेंट क्लास व्हिच इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एनिमल क्लास, ठीक है। एंड देन इट प्रोवाइड्स एन इट्स ओन एक्सटेंशन ऑफ द मूव मेथड। दैट्स क्लियर है। सिमिलरली इफ यू लुक एट द लाइन क्लास, ये देखिए अभी मैंने जो ओवरराइड लगा रखा है ना, तो ये जो एरर आ रही है ये आईडी हमको दे रहा है। आईडी क्या समझ रहा है कि भाई ये ओवरराइडिंग है और मूव मेथड एक्चुअली एलिफेंट में नहीं है, तो ये एरर दे रहा है। अगर मैं इस एनोटेशन को हटा दूं तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा, राइट, एरर चली गई, ठीक है, फाइन। ईट मेथड तो ओवरराइड हो रहा है, लॉयन इज ईटिंग मीट, बट मूव मेथड जो है आपका ओवरराइड नहीं हो रहा है, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सो वी कैन से lion is an animal, cat is an animal, elephant is an animal, ठीक है, जैसा पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। और जहां भी हम कहेंगे इज अ रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है, वहां पे हम क्या कह सकते हैं, लेट मी जस्ट, हाँ, इन सब कोड को मैं एक बार कमेंट में डाल देता हूं। We can say animal A is equal to or A1 is equal to new cat, फाइन। सुपर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, करेक्ट। एनिमल A2 is equal to new एलिफेंट, ठीक है। एनिमल A3 is equal to new lion, right, fine। Now if I say A1 dot eat, I will get certain output. A2 dot eat, I will get again certain output. A3 dot eat, I will again get certain output. क्या क्या आउटपुट मिलेंगे गेस कर सकते हैं? इस क्लास को आप कहिए, मैं खोल के आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। मुझे स्टेटमेंट बताओ क्या क्या आउटपुट मिलेंगे, स्टेटमेंट क्या क्या मिलेंगे बताओ बताओ, दिखाता हूँ मैं। क्या एनिमल क्लास देखना है पहले?
A1 किसका है? कैट का है, राइट? कैट का क्लास दिखाऊं? इट है नहीं एनिमल क्लास का। अगर ये मैंने कहा ना कि आप सबसे पास वाला मेथड देखेंगे, अगर पास वाला नहीं मौजूद है तब कहाँ जाएंगे? दूर वाले पे जाएंगे। अगर इसका अपना ओवररिडन मेथड नहीं है तो कहाँ जाएगा? ये इनहेरिटेड मेथड पे जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो क्या करेगा? एनिमल क्लास का ईट मेथड will take the charge and will get the output animal eating animal food, right? Then what about A2? Elephant का? Elephant is eating sugar cane, correct? Then what about lion? A3, lion is eating meat. ठीक है? So just let's quickly run it and check. All okay? अभी जो तीनों ऑब्जेक्ट हमारे बने हैं, एड ब्लॉक कमेंट में डाल देता हूँ मैं तीनों के मेथड जो कॉल हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ओके। ये हमने ऑब्जेक्ट बना हुआ है कैट का, ठीक है। और सपोज करो कि कैट के पास अपना मूव मेथड है जो कि एनिमल क्लास के अंदर नहीं है, तो इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली नहीं कर पाएगा जब तक एक्सप्लिसिट कास्ट ना कर ले। जो सिर्फ एनिमल क्लास के अंदर इनिशियलाइज सिर्फ उन्हीं कर सकता है। इनका क्वेश्चन है कि एलिफेंट के अंदर जो एक्सटेंशन वाले मेथड है, ठीक ना, एक्सटेंशन वाले मेथड है, ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, जो जैसे मूव मेथड है, राइट? अब अगर मैं एलिफेंट का जो रेफरेंस वेरिएबल है A2 है, A2 पे अगर मूव कॉल करने की कोशिश करूँ तो मुझे कंपाइलेशन में एरर मिलेगी, राइट? राइट? अगर मैं ऐसे लिखूँ A2 डॉट मूव तो ये कंपाइलेशन में मुझे एरर देगा, करेक्ट? अब मैं क्या करूँ कि ये चलने लगे? एनिमल का ही मतलब जिसके अंदर ये इनिशियलाइज है उसका टाइप बनाना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि एट द रन टाइम आई एम गिविंग द गारंटी दैट यू विल नॉट गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल, रादर you will get the object of elephant and then treat it as an object of elephant and then allow me to run move method। कैसे बताएंगे बताइए? कि पहले एक ब्रैकेट लगा के पहले इसको बताएं कि A2 जो है वो एनिमल है, राइट? इस ब्रैकेट में बता देते हैं A2 जो है वो एनिमल है। अब इस पूरी चीज को एनिमल की तरह ट्रीट करो और ट्रीट करने के बाद उसके ऊपर मूव मेथड को कॉल करो। सॉरी, एनिमल नहीं, ये तो एलिफेंट होगा ना। हाँ, एलिफेंट की तरह ट्रीट करो और फिर उसे मूव मेथड कॉल करो। अब कंपाइलर चली गई। अब रन कर लीजिए, देख लीजिए आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एलिफेंट इज मूविंग स्लोली, राइट? लॉयन के अंदर देखिए मूव मेथड है ना, करेक्ट? अगर मैं ऐसा करूं, यहां मैं लॉयन कर दूं, अब क्या होगा? अभी हम कंपाइलर से क्या कह रहे हैं? कंपाइलर से ये कह रहे हैं कि जो मतलब एलिफेंट का जो ऑब्जेक्ट है तुम्हें A2 में जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा? नहीं, अभी हम कह रहे हैं लॉयन का मिलेगा। हमने बता दिया लाइन का मिलेगा ना, लाइन लिख दिया है ना। भले ही एलिफेंट का ऑब्जेक्ट उसके अंदर मौजूद है, हमने कंपाइलर से कह दिया तो लाइन का मिलेगा। कंपाइलर मेरी बात मान लेगा, विश्वास कर लेगा, वो समझेगा ये झूठ नहीं बोल रहा है बंदा, लेकिन ये झूठ हो गया। रन टाइम में तो उसको एलिफेंट मिलेगा। अब क्या एरर आएगी फिर? मूव मेथड तो वैसे लाइन में भी है, फिर लाइन का मूव मेथड तूने चला दे। दूसरे क्लास का है
और चूंकि हमने इसको लॉइन बता रखा है तो वो लॉइन में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्या एरर आएगा, देखो कंपाइलेशन एरर देख लो, रन टाइम एक्सेप्शन, सॉरी बताया था ना पहले, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। उसने क्लास को एक्सप्लिसिटली कास्ट करने की कोशिश करी, यानी कन्वर्ट करने की कोशिश करी। किसको? ऑब्जेक्ट एलिफेंट का था, कन्वर्ट करने की कोशिश करी जो मैंने बताया था लाइन में, और जब नहीं कन्वर्ट हुआ तो बता रहा है कि तुमने जो मुझसे बोला था वो झूठ बोला था। ये क्लास कास्ट एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ, सिंपल सी बात। तो वो एक्सेप्शन देके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? एक्सप्लिसिट कास्ट। गाइस क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ I have told you in the last class that every class which doesn't have a parent class, that class gets a default parent class which is the object class. हेलो सलाम। तो इसका मतलब ये जो कोड लिखा हुआ है abstract class animal, ये जब कंपाइल होगा तो बाइट कोड में जो कोड कन्वर्ट हो गया आएगा उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, राइट। चाहे मैंने लिखा है या नहीं लिखा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट। ये ऐसा लिख करके आ जाएगा। प्रूफ अगर देखना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अभी इसके पेरेंट क्लास कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब देखो जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, एनिमल A1 इज इक्वल टू न्यू कैट बना रखा है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट O1 इज इक्वल टू, क्या है वो है, O1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल। क्या कह रहा है ये, एक मिनट, एनिमल को मैंने एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं कर रखा है, अभी करेगा, कर दिया ऐसे। अगर ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो सुपर टाइप के रेफरेंस से हम चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो अगर ये कंपाइलेशन नहीं दे रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है इसका पेरेंट क्लास है, ठीक है। यही नहीं हम आगे भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सेम वेरिएबल O1 राइट इज इक्वल टू न्यू कैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर मेथड कॉल करना होगा तो मेथड क्या कॉल कर पाएंगे हम O1 पे, एनिमल क्लास का कोई मेथड कॉल नहीं होगा, कैट क्लास का कोई मेथड कॉल नहीं होगा, लेकिन कुछ तो मेथड होगा अगर ऑब्जेक्ट है तो, राइट। O1 डॉट, देखिए क्या है, सॉरी, ये मेथड दिख रहे हैं आपको, सारे पब्लिक मेथड्स हैं, राइट। 8-9 मेथड है। ये मेथड ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, जिसमें इक्वल्स मेथड है, गेट क्लास मेथड है, हैश कोड है? किसके अंदर रहेगा? क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है ये। रुको रुको, मैं तुम्हें जैसे दिखाता हूँ, इसको खोल लो, ऑब्जेक्ट क्लास को खोल लो, देखो इसके अंदर तुम्हें सारे मेथड दिख जाएंगे, यहाँ भी तुम्हें दिख रहा है ना आउटलाइन में। इसके अंदर भी देखो कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद देखो हैश कोड मेथड दिख रहा है, हैश कोड था उसमें। इक्वल्स मेथड देखना है तो देखो इक्वल्स सर्च करो, फाइव फाइव फाइव, देखो इक्वल्स मेथड दिख रहा है, राइट। ये जो 8-9 मेथड जो आपको दिख रहे हैं ना, सारी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइंड है।
तो पेरेंट क्लास के अंदर जो डिफाइंड मेथड है वो तो इनहेरिट होके आ जाएंगे, फिर एनिमल के अंदर भी आएंगे, फिर वो कैट के अंदर भी आएंगे। यानी हम दुनिया में कोई भी क्लास अपनी मर्जी से बना लें, उसके अंदर ये जो 8-9 मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइंड है वो सारे इनहेरिट होकर के आएंगे, ये सारे इनहेरिट होकर के आएंगे। और ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि आपको टाइम टाइम पे इन मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, और इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके ऑलरेडी सुपर मोस्ट यानी यूनिवर्सल सुपर क्लास जो कि ऑब्जेक्ट क्लास है उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप खुद अपने क्लास जो लिख रहे हैं उसमें प्रोवाइड ना करना चाहें, तो पेरेंट क्लास यानी ऑब्जेक्ट क्लास से जो इनहेरिट होकर मेथड आ रहा है उसको यूज़ करके उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो दीज आर वेरी जनरल मेथड्स विच विल बी यूज्ड वेरी ऑफन, ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। एंड so Java has what it has done, it has put them at the top level, abstracted put them at the top level for every class to access or to inherit rather, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्लास में जो मेथड है वो सारे के सारे हर क्लास को जो भी क्लास आप बनाए एबीसी नामी क्लास बनाए तो अपने आप वो क्या हो जाएगा एबीसी एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। अगर हम एबीसी एक्सटेंड एक्सवाइजेड करेंगे तो एबीसी का जो पेरेंट क्लास बन गया एक्सवाइजेड बन गया, बट देन एक्सवाइजेड का कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो एक्सवाइजेड एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। सो इन दैट केस एबीसी आल्सो एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है बात। जैसे कैट इज अ एनिमल, कैट इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, तभी तो हम ऑब्जेक्ट से कैट को हम रिफर कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल से कैट को हम रिफर कर पा रहे हैं, राइट, क्लियर है। So object is called as a universal superclass, that means it's the parent class of every class that we create, ठीक है, whether we write it or whether we do not write it, ठीक है, क्लियर हो गया। The methods which are given in the object class are inherited by every classes, they become the part of every class, क्लियर हो गया। इनका यूज आगे देखेंगे कहाँ होता है ये, अभी अभी परेशान मत हो, मतलब जो मेथड्स है ना इनका यूज हम देखेंगे, ठीक है। बल्कि अगर यूज देखना है तो देखिए ऑब्जेक्ट में एक मेथड टू स्ट्रिंग भी दिख रहा है आपको, टू स्ट्रिंग, अब इसका यूज देखते हैं। इसको अब मैं हटा मैंने कमेंट में डाल दिया। A1 A2 A3 किसके रेफरेंस वेरिएबल क्या इनके हैं, एनिमल टाइप के, ऑब्जेक्ट क्या है अलग अलग है, कैट एलिफेंट एंड लॉयन, राइट। अगर मैं ऐसे कहूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A1, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A3, डायरेक्टली रेफरेंस वेरिएबल को ये प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा। प्रिंटलन मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट करता है, राइट, कंसोल पर, करेक्ट। तो क्या प्रिंट करेगा, डिफिनेशन ये होती है कि A1 का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट कर दें क्योंकि वो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है ना। अभी देखो, अभी मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, जरा आउटपुट पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, बताओ। कुछ कोड आएगा, राइट, ये देखो पूरे पैकेज के साथ क्लास का नाम @ एंड देन अ हैश कोड। ये हैश कोड बेसिकली इंडिकेटर है एक तरह के एड्रेस के लिए कि हीप में कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपका लोकेटेड है, इंडिकेशन है, रियली आप यूज करके हीप तक पहुंच नहीं सकते हैं इसको, ठीक है, पॉइंटर नहीं है ये, ठीक है, पॉइंटर से डिफरेंट है ये, ठीक है, बट आप समझ सकते हैं किसी तरह का एड्रेस का इंडिकेटर है ये, ठीक है, जिसको जेवीएम जानता है कैसे इंटरप्रेट करके उसे कैसे पहुंचना है,
ठीक है, ये देखो ये जो हैश कोड आ रहा है ये दूसरे वाले हैश कोड से डिफरेंट है, तीसरे वाले से भी डिफरेंट है, राइट? तीनों अलग अलग है क्योंकि तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं, राइट? तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये क्या है। यहाँ पे हो क्या रहा है, सिर्फ A1 जब हम डाल रहे हैं ना तो A1 पे बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जा रहा है। अब ये ध्यान रखना ये क्या प्रिंट कर रहा है, 30 से कुछ शुरू हो रहा है 81 में खत्म हो रहा है ना, बाकी सब में मैंने टू स्ट्रिंग नहीं लगाया, पहले वाले पे लगा दिया है। देखो कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी इसकी, मैं दोबारा प्रिंट करूंगा, दोबारा से रन कर रहा हूँ, ठीक है। जो पहला आपका आउटपुट आ रहा था E81 टाइप का, आपका सेम हैश कोड दोबारा से आपको मिलेगा, आ रहा है ना। तो क्या कर रहा है, प्रिंट एलर मेथड के अंदर जो चीज हम पास कर रहे हैं, मेथड में इंटरनली क्या कर रहा है, उसको टू स्ट्रिंग मेथड लगा के कॉल कर दे रहा है। और टू स्ट्रिंग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन क्या कैट में मौजूद है? नहीं मौजूद है। तो वो कहाँ से ले रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास से ले रहा है। और ऑब्जेक्ट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसको अगर आप जाके देखिए, ये देखिए इसका कमेंट पढ़िए, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब आप नहीं जानते कि ये मतलब इस क्या इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो जो जो जेवीएम को उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लग रहा है वो रिटर्न कर दे रहा है। और जेवीएम को क्या लग रहा है, उसका फुली क्वालिफाइड नेम पैकेज के साथ हम बता दें, और बता दें कि उसका हैश कोड क्या है, वो हैश कोड है बेसिकली जो एड्रेस टाइप का आप देख रहे हैं ना, वो हैश कोड है। हीप में किस लोकेशन पे पॉसिबली जिससे हम जेवीएम पा रहा है उसको, उसका एड्रेस सॉर्ट ऑफ चीज बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये जेवीएम का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को करने का तरीका है। जितनी बार आप जितनी बार आप क्या करेंगे, नए बार आप रन करेंगे ना, हो सकता है वो नया ऑब्जेक्ट बने आपका, ठीक है। ओके, अब अगर हम कहें कि भाई टू स्ट्रिंग मेथड में हटा देता हूं यहां से, बिकॉज पुटिंग इट और नॉट पुटिंग इट इज द सेम थिंग, ठीक है। लेट्स से लेट्स इंप्लीमेंट द टू स्ट्रिंग मेथड इन द कैट मेथड, और अदर ओवरराइड इट, लेट्स ओवरराइड द स्ट्रिंग मेथड इन द कैट क्लास। मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में आ रहा हो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा टू स्ट्रिंग, इसको मैं ऑप्शन आ रहा है ओवरराइट करने के लिए, मैंने ओवरराइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न की में कर दिया, किसका ऑब्जेक्ट सही है, कैट, भाई कैट का ऑब्जेक्ट है। तो मेरे समझ से एज अ डेवलपर जो जू का एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, उसके समझ से ये होना चाहिए कि कैट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आए कि बताएं कि ये कैट का ऑब्जेक्ट है। और अगर कोई फील्ड अगर कैट का नाम अगर डिनोट करती हो तो उसको भी हम यहाँ ऐड कर देते कि द नेम ऑफ दिस कैट इज समथिंग दिस, है ना, वो ऐड कर देते। फिलहाल वो नहीं है तो सिंपली हम क्या करें, दिस इज अ कैट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। ये मेरा स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। अब दोबारा से अगर हम उस कोड को चलाएं टेस्ट एनिमल में, इस कोड में कोई चेंजेस नहीं हुए, राइट। अब इसको हम दोबारा चलाएं तो अब A1 पे जो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा वो कौन सा कॉल होगा, कैट का। यानी हमें रिजल्ट अब डिफरेंट मिलना चाहिए, मिल गया। तो जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मेथड आपके डिफाइंड है वो इसलिए डिफाइंड है क्योंकि अगर आपने उनको सब क्लासेस में ओवरराइड नहीं करा है तो वो एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म एक कॉमन सेट ऑफ मेथड बिहेवियर्स अवेलेबल हैं सारे क्लासेस के लिए, जिसको आप बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। वरना इट्स अप टू यू, आप चाहे तो उसको ओवरराइड करके उसके बिहेवियर को आप चेंज कर ले, विच मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है यहाँ तक। सेम गोज फॉर अदर मेथड्स लाइक इक्वल्स मेथड एंड अदर मेथड्स, ठीक है। Okay, now what I want to do is I want to add these all these instances
or the reference variable a1, a2, a3, which are the instances of cat, elephant, and lion, into a array list, as we did in the last class on the board, right? So one way is I can say array list is equal to new array list. क्या प्रॉब्लम बता रहा है ये? अरे लिस्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, मतलब क्या करना चाहिए हमें? अगर ये एरर आपको दिखे कंपाइलेशन में तो आप क्या समझेंगे इससे? मतलब ये java.lang पैकेज के अंदर नहीं है, ये हमारे क्रिएटेड पैकेज के अंदर नहीं है, ये किसी और पैकेज के अंदर है, तो क्या करना चाहिए हमें? इंपोर्ट ऐड करना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट ओ, इंपोर्ट ऐड हो गया, ऊपर देखिएगा ऐड हो गया अरे लिस्ट का, एरर चली गई है ना? फाइन। नाउ लेट मी से लिस्ट डॉट ऐड। जरा ध्यान दो, जब लिस्ट डॉट ऐड हम कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है आपको? क्या दिखा रहा है बताइए? दो मेथड दिखा रहा है, राइट? अगर एक ही नाम से दो मेथड अवेलेबल हो और दोनों के नंबर ऑफ पैरामीटर या तो चेंज हो या नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो या तो टाइप चेंज हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। यानी एक ही नाम को मैं अलग अलग काम के लिए ओवरलोड कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा हूँ, राइट? करेक्ट। अभी देखो पहला जो ऐड मेथड है उसमें क्या पास हो रहा है? ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, फाइन। दूसरे में क्या पास हो रहा है? इंडेक्स के साथ ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। मैंने आपको बताया था अरे लिस्ट इज नथिंग बट अ अरे इंटरनली, राइट? द ओनली बेनिफिट विद अरे लिस्ट इज दैट फॉर अ नॉर्मल अरे इट्स स्टैटिक, ठीक है? यहाँ पे अरे लिस्ट में क्या हो रहा है कि जब अरे की साइज फुल हो जाएगी तो अपने आप वो ग्रो कर जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल जब कंपाइलर आपका जेवीएम देखेगा कि 75% या 90% कैपेसिटी फुल हो रही है तो उसने एडिशनल 50% कैपेसिटी अपने आप ऐड कर दी, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर एल्गोरिथम इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू। नहीं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एल्गोरिथम इट इज वर्किंग अपॉन, ठीक है? वो मैं अपनी तरफ से एक अंदाज बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से काम करता है, ठीक है? एग्जैक्टली क्या है वो हमें नहीं पता और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? हाउ डू वी वरी? क्योंकि जब वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि आप जितने एलिमेंट आपको ऐड करना है आप ऐड कर लो, जब रिड्यूस करना है रिड्यूस करो, मैं ऑप्टिमम उसकी साइज को मेंटेन रखूंगा, ना तो साइज ज्यादा वेस्ट होगी और ना ही आपको कभी साइज की कमी आएगी। तो जब ये हमको प्रॉमिस जेवीएम कर रहा है, व्हाई शुड आई वरी? ठीक है, क्लियर? हाँ, बिकॉज इट्स ओपन सोर्स कोड, आप चाहे तो कोड पे जाके फिगर आउट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है? ब्लॉक्स वगैरह भी सर्च करेंगे तो डिफरेंट वर्जन के हिसाब से हो सकता है, अलग अलग वर्जन के हिसाब से अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन भी हो, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर वर्जन के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन भी आपको मिल सकता है कम्युनिटी, जावा कम्युनिटी पे, ठीक है? बात क्लियर है? अगर इनको पूछा कि 50% ही ऐड करेगा या कितना ऐड करेगा, आई डोंट नो, वी विल हैव टू फिगर आउट कि किस वर्जन के लिए क्या कर रहा है, ठीक है? उनका इंटरनल मैटर है, ठीक है? मुझे अपने प्रॉमिस से मतलब है कि मेरा काम हो रहा है, दैट्स इट। एज अ डेवलपर मुझे अपने एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक पे ध्यान देना है ना? लैंग्वेज के इंटरनल डिटेल्स पे ध्यान नहीं देना है, मुझे उतना ही समझना है जितना मेरा काम चल रहा है, मैं उसको एफिशिएंटली यूज कर पा रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है? क्लियर है? तो ये दूसरा जो मेथड है इंडेक्स वाला, इसका मतलब क्या है, क्या लगता है? अरे में कैसे आप ऐड करते थे? इंडेक्स में ऐड करते थे ना, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इंडेक्स नहीं बता रहे तो सीक्वेंशियली ऐड होते जा रहा है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स पे ऐड होते जा रहा है। लेकिन आप इंडेक्स को कंट्रोल करना चाहें, जैसे आप कहते थे ए ऑफ 5 इज इक्वल टू दिस, आप कंट्रोल करना चाहें जैसे अरे में करते थे, तो वैसे ही सेकंड मेथड से कर सकते हैं कि आप इंडेक्स भी सप्लाई करें न्यूमेरिकल फॉर्म में 1 2 3 4 5 जीरो से लेकर के, और साथ में जो ऑब्जेक्ट ऐड करना है उसको भी कर पाए। तो दोनों मेथड आपके पास ओवरलोडेड मेथड है, ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ओवरलोडेड मेथड नहीं पता है क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग सबको पता है ना भाई गाइस? ठीक है, तो मैं पहला वाला कॉल कर रहा हूँ, मुझे इंडेक्स से भी मतलब नहीं, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि तुम नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस पे ऐड कर दो। तो मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ? अरे लिस्ट डॉट ऐड
से A1। अच्छा, पैरामीटर में क्या दिखा रहा था? ऑब्जेक्ट ले रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि ये लिस्ट एनिमल के लिए है या ये लिस्ट कैट के लिए है, मैंने बताया नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या समझ रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए है। तो अगर मैं ऐसा करूं, अरे लिस्ट एड A1, परफेक्टली फाइन, ठीक है। लिस्ट डॉट एड A2, अगेन फाइन, ठीक है। लिस्ट डॉट एड A3, this is also fine. Now if I want to iterate and call the each method on all these items, how do I call it? How do I iterate with the advanced for loop? कैसे करें बताओ? For फिर एलिमेंट टाइप क्या है? एनिमल है, राइट? ए डाल दिया, रेफरेंस वेरिएबल। कॉलम के लेफ्ट साइड क्या होता है? लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो जिस टाइप के होते हैं उस टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, और राइट साइड में क्या करते हैं? लिस्ट को ऐड कर देते हैं, ताकि लिस्ट से एक एक करके वो एलिमेंट उठे और ए में जाते जाए, और फिर हम ए का जो चाहे करना है हम कर लें। ठीक है, हमें ए का क्या करना है? हमें क्या करना है? ए डॉट ईट मेथड कॉल करना है, राइट? यही पर्पज है। बट वाई वी आर गेटिंग दिस एरर? पढ़िए, एरर पढ़िए। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एलिमेंट टाइप ऑब्जेक्ट टू एनिमल। आपने जब ऐड किया था तो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट ले रहा था ना, और आप यहाँ बता रहे हो कि एनिमल है। प्रॉब्लम हो गई, मिसमैच हो गया। वो कह रहा है कि मैं जब लिस्ट में तुमने मुझे ऐड कराया था तो मैंने तो उसको एनिमल समझ के, ऑब्जेक्ट समझ के ऐड किया था। अब तुम कह रहे हो कि इसमें एनिमल के रेफरेंस वेरिएबल में ऐड कर दो, मैं कैसे ऐड कर दूं? ठीक है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अब ऑब्जेक्ट हो गई तो ये लाइन की एरर तो चली गई, लेकिन अगले लाइन की एरर शुरू हो गई, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है तो उसमें ईट मेथड नहीं है, वो तो एनिमल में है, चाइल्ड क्लास में है, राइट? दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब क्या करें? टाइप कास्ट करना पड़ेगा। हमें क्या बोलना पड़ेगा भाई कि ये जो चक्कर है इसको तुम ऐसे ट्रीट करो कि ये क्या है, मेरा एनिमल ही क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा तुम्हें रन टाइम पे, और जब एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो इस पूरे को पूरे एनिमल मान करके फिर मुझे उस पर ईट मेथड कॉल कर लेने देना। अब चल गया? चला के एक बार देख ले, आउटपुट सही मिल रहा है या कोई रन टाइम एक्सेप्शन ही मिल रहा है? चला के देख ले। करेक्ट चल रहा है। कैट, एलिफेंट, लॉयन तीनों के ईट मेथड के से आउटपुट मिल रहे हैं आपको, करेक्ट गाइस? लेकिन ये तरीका कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक्सप्लिसिट कास्ट कर रहे हैं, और जहां भी एक्सप्लिसिट कास्ट करेंगे वहां रन टाइम एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन में आने के चांसेस हैं, राइट? अभी मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया होता, लिस्ट डॉट एड न्यू स्ट्रिंग अंडर डबल कोट तो ये भी तो ऐड हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग का भी तो पेरेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट तो सभी का पेरेंट क्लास है ना। तो जब वो ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है तो स्ट्रिंग भी ऐड हो जाएगा। लेकिन जब स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर आपको अभी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने बता रखा है भाई जो भी तुम्हें मिले वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसको तुम एनिमल टाइप से ट्रीट करो। कंपाइलर को बोल रखा है कि रन टाइम में तुम्हें एनिमल मिलेगा। अब क्या होगा? क्या होगा बताइए? अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखा था, क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिलेगा रन टाइम पे, कंपाइल में नहीं, रन टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपने बोला है भाई एनिमल है, और जब आप कास्ट करना चाह रहे हैं ईट मेथड चलाने के लिए तो स्ट्रिंग मिल रहा है, स्ट्रिंग में तो ईट मेथड है नहीं, है ना? अब जैसे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे क्या बोलेगा? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। मिल गया? ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज द डेंजरस वे।
ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि फिर डेवलपर ने गलती से कुछ भी ऐसा ऐड कर दिया विच इज नॉट एन एनिमल, तो आपको क्लास का एक्सेप्शन मिलेगा। करेक्ट? तो हमें ये ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्ट्रिंग अब देखिए, सॉरी स्ट्रिंग की जगह एनिमल करिए इसको, रोने में थोड़ा दिमाग कम काम करता है भाई, कुछ गड़बड़ी करूँ बता दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो हमने लेस देन ग्रेटर देन के अंदर लगाया है, क्या बोलते हैं इसको, जेनरिक्स, राइट। इसमें हमने बनाया कि जो अरे लिस्ट हम बना रहे हैं वो एनिमल टाइप के लिए बना रहे हैं, तो एनीथिंग विच इज एनिमल कैन बी एडेड, ठीक है। एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, कैट इज एनिमल, कैट का ऐड हो जाएगा, लायन का ऐड हो जाएगा, कोई भी एनिमल का जो सब चाइल्ड है दैट इज एन एनिमल, उसका ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। और साथ में इधर भी हमको लगाना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन में भी कि भाई ये एनिमल का है, दोनों साइड से, ये रेफरेंस वेरिएबल है और ये उसका इम्प्लीमेंटेशन है अरे लिस्ट का। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है ये कंपाइलेशन एरर देने लगी, क्यों देने लगी? The method add animal in the type ArrayList animal is not applicable for the argument string। तो अब कंपाइलर ने ही हमको फर्स्ट हैंड रोक दिया कि मैं किसी भी गलत टाइप का ऑब्जेक्ट उस लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता जो कि सिर्फ एनिमल के लिए बनी है। जो एनिमल लेगी और एनीथिंग विच इज एनिमल उसको लेगी, यानी चाइल्ड्स ऑफ सब क्लासेस ऑफ एनिमल लेगी। बात क्लियर हो गई? अगर मैं इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दूं तो वही पुराना वाला हो गया, फिर मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली वो काम कर रहा था, है ना, जेनरिक लगाने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। सो यहाँ तो क्लियर हो गया गाइस? अब टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स अब टाइप कास्टिंग की हमें जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एनिमल आएगा, क्योंकि आपने एनिमल ही बता रखा है तो लिस्ट ही एनिमल की है, यहाँ एनिमल लेगा वो। चला के देख लो एक बार, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब मैं इसमें एक चेंज और कर रहा हूँ, छोटा सा चेंज। यहाँ अरे लिस्ट की जगह मैं क्या कह रहा हूँ, इसको अरे लिस्ट हटा के लिस्ट ऐड कर दे रहा हूँ। कंपाइलेशन क्या आ रही है, क्या करना चाहिए, इंपोर्ट लिस्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज में है, जो जावा डॉट लाइन में नहीं है तो हमको इंपोर्ट ऐड करना पड़ेगा, राइट। ऊपर इंपोर्ट आपका ऐड हो गया, राइट। ऐसा क्यों करा, इसको समझने के लिए एक काम करिए, लिस्ट को का आप देखिए टाइप हायरार्की देखिए, क्विक टाइप हायरार्की। लिस्ट इज अ सुपर टाइप, ये जो ऐसे दिख रहा है ना, आई टेबल कलेक्शन लिस्ट, लिस्ट इज अ सुपर टाइप, इसका सब टाइप क्या है, ये सारे हैं, इसमें एक अरे लिस्ट है, एक और क्या है, लिंक लिस्ट भी है। अरे लिस्ट अरे होता है, लिंक लिस्ट आपको पता है वो सीक्वेंशियल एसेस के लिए होता है, अरे लिस्ट रैंडम एसेस के लिए होता है, राइट। और भी बहुत सारे चेक लिस्ट है, आइडेंटिटी अरे लिस्ट है, देयर आर सो मेनी लिस्ट। सो इन एसेंस all these implementations are one of the implementation of a list, ठीक है। लिस्ट इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो चाहे वो लिंक लिस्ट हो तो भी लिस्ट होगी, अरे लिस्ट हो तो भी लिस्ट होगी, राइट। तो अगर आज मैंने इसको लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ एनिमल करा है, तो कल को अगर मैं चाहूँ इसके बिहेवियर को चेंज करना है तो मैं कह सकता हूँ लिस्ट इज इक्वल टू न्यू
लिंक लिस्ट ऑफ एनिमल। देखिए कंपैरिजन आई, नहीं आई ना? ये क्या है? दिस इज अगेन प्रोग्राम टू सुपर टाइप, प्रोग्राम टू सुपर टाइप, यानी सुपर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल ले रहा हूं मैं लिस्ट के लिए भी। जैसे एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल लिया है प्रोग्राम टू सुपर टाइप के लिए, ठीक है, और उसके रेफरेंस वेरिएबल को मैं यूज कर रहा हूँ होल्ड करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लासेस ऑफ और चाइल्ड्स ऑफ एनिमल। सिमिलरली लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल ले रहा हूँ मैं लिस्ट के रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए, और उसका चाइल्ड चाहे अरे लिस्ट हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे एंटिटी अरे लिस्ट हो, या कोई और अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट हो, उन सबको वो होल्ड कर लेगा एट द रन टाइम, एंड वी कैन आल्सो इंटरचेंज। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, यानी अगर आप एक मेथड लिखेंगे जो कि लिस्ट इंटरफेस को एक्सेप्ट करता हो, तो उसमें आप लिंक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, उसमें आप अरे लिस्ट भी पास कर सकते हैं। करेक्ट? ठीक है ना? आधी बात क्लियर? क्योंकि बताया आपको डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेशन, अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस का ऑपरेशन है तो आप अरे लिस्ट को यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा एडिशन एंड डिलीशन का ऑपरेशन है तो आप क्या करेंगे? लिंक लिस्ट को यूज़ करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर फीचर्स you can always switch upon the data structure implementation। ठीक है, क्लियर है गाइस? आगे बढ़ा जाए, मेरे कंप्यूटर की बैटरी भी अब जवाब देने वाली है।